Hello everyone, welcome to our interview series Life After ESC। इस इंटरव्यू सीरीज में हम लोग आप लोगों के सामने उन लोगों को लाते हैं जो ऑलरेडी ESC क्वालिफाई कर चुके हैं, और इस इंटरव्यू सीरीज में हम उन लोगों से बात करते हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उनकी ESC की जर्नी, उनकी वर्क प्रोफाइल और ESC में उनका ग्रोथ कैसा है। आई एम JS Gill, ex scientific officer BRC, with more than 8 year teaching experience in ESC and GATE field. With me today is Ketan Patil. He is working with Indian Railways. अगर मैं ESC का बात करूं तो ESC is conducted by UPSC annually. इसका 2 स्टेज है, रिटन एंड इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स दोनों स्टेज क्वालिफाई करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में पोस्टिंग मिलती है, एंड दोज मिनिस्ट्रीज आर समथिंग लाइक दिस: सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, Indian Naval Armament Service, Central Water Engineering Service, Geological Survey of India, Indian Defence Service of Engineers, Assistant Naval Store Officer in Indian Navy, Assistant Executive Engineer in Border Road Organization, Central Electrical and Mechanical Engineering Service, Defence Aeronautical Quality Assurance Service, Indian Skill Development Service. So today we have with us is Ketan Patil. Ketan Patil, welcome to our interview series Life After ESC. Thank you, sir. Please tell us something about yourself. Hello, everyone. My name is Ketan Patil, and I have secured All India rank 51 in Engineering Services exam 2018. Apart from that, I also gave GATE examination in 2018 itself, got 99.4 percentile. And on that basis, I was called for BARC, ECIL, IOCL. But my dream was clear that I always wanted to join Indian Railways. So I continued with my mains preparation, as at that point of time मेरा pre भी clear हो गया था, and mains के लिए मतलब preparation almost half हो चुका था. So I rejected all those offers, and I started working on my mains, and finally I cleared it with All India rank 51. And right now I'm currently working in Indian Railway Services of Mechanical Engineering. Great, Ketan. Thank you, sir. So what was your inspiration for cracking ESC examination? Right. Before inspiration, I would like to share something. Guys, I'm a student of Gill sir only. मैंने उनसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ा है, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मुझे उनका तरीका बहुत पसंद होता था टू टीच एवरीथिंग, स्पेशली हाइड्रोलिक मशीनरी वाज समथिंग जो मैंने कभी किसी से नहीं पढ़ा. थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट. कमिंग टू द क्वेश्चन अबाउट इंस्पिरेशन फॉर क्रैकिंग. सर वैसे तो इंस्पिरेशन वाज my dad, because he's still working in Indian Railways. Okay, and मेरे घर में basically railways का ही माहौल है, क्योंकि from the start, like अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो I am the third generation in Indian Railways. So my grandfather was in railways, father is currently working in railways only, and मैं third generation हूँ. तो एक तरह से वो घर में रेलवे ही रहता है, तो पहले से ही सबको लगता है कि हमें भी इसी सेक्टर में जाना चाहिए. So the inspiration was the culture that was there inside my home. तो उसी से लगता था कि कैसे एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना है, कौन कौन से एग्जाम्स प्रिपेयर करनी है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सोचा था कि लोको पायलट बन जाए, तो उसका भी प्रिपरेशन मैंने किया था. बट आफ्टर मैंने कोचिंग एंड ऑल ज्वाइन की थी, तब पता चला था कि ये भी ऐसे कुछ चीजें होती है. तो फिर इन्हीं चीजों का प्रिपरेशन किया, एंड फाइनली आई लैंडेड हियर. ग्रेट केतन. सो आपने जैसा बताया कि आपका शुरुआत में ड्रीम कुछ और था और आप अभी उससे काफी ऊपर लेवल पे जा चुके हैं. सो आई होप यू आर हैप्पी विद इंडियन रेलवेज. यस सर, आई एम प्रीटी मच हैप्पी. Ketan, what was your preparation strategy? I mean, how you prepared for ESC? Yes. Sir, the thing is कि मैंने 17 एक्चुअली मैं 2015 पास आउट हूँ. तो पास आउट होने के बाद मैंने 1 साल जॉब किया था इन अ प्राइवेट कंपनी, एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट दैट कंपनी एंड देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो फर्स्ट ईयर में जब इंजीनियरिंग सर्विसेज हुई थी इन 2017, तो उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं वापस आ गया था फ्रॉम दिल्ली. मैं दिल्ली में था प्रिपेयर करने के लिए. तो 17 में जब मैं वापस आया था, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इन 17, देन आई डिडंट हैड एनी स्ट्रेटजी प्लान, मैं सिर्फ पढ़े जा रहा था. ओके, बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट
देयर हैज टू बी सम प्लान जिस पे आपने वर्क करना चाहिए. ओके, सो आई बेसिकली फॉलोड 4 थिंग्स. फर्स्ट थिंग वाज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड वाज सॉल्व, रिवाइज एंड टेस्ट. तो ये 4 एक साइकिल है सर. जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, बहुत से लोग पढ़ते हैं ईएसई एंड गेट का जो प्रिपेयर कर रहे हैं, पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक वगैरह. तो इसमें होता ये है कि आपको एक तरह से साइकिल फॉलो करना है. तो मैंने वही साइकिल फॉलो किया था. फर्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, सेकंड इज यू नीड टू रिवाइज बिकॉज नॉलेज इज हाईली वोलाटाइल. तो वो आपके दिमाग से उठ जाएगा अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे. थर्ड थिंग इज सॉल्व. ओके, सो यू नीड टू सॉल्व इन बिटवीन. तो अंडरस्टैंडिंग में भी आपको सॉल्व करना है, आप रिवाइज कर रहे हो तो भी आपको सॉल्व करना है. फाइनली एक टेस्टिंग फेज आता है जब आपका कंप्लीट प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा, आपको टेस्ट करना है. अगर आप टेस्ट में फेल होते हो देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन विद अंडरस्टैंडिंग फेज, क्योंकि वहीं कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से आप टेस्ट फेल हुए. तो सर इसी यही था कि एक साइकिल में वर्क कर रहा था. प्लान करो, अंडरस्टैंड करो, देन सॉल्व करो, खुद को रिवाइज करो सब चीजें जो भी पढ़ी है, एंड देन टेस्ट करो. तो ये साइकिल ही फॉलो किया और यही अल्टीमेट स्ट्रेटजी है सर. ग्रेट केतन, आपका आई होप कि यू गॉट दिस सक्सेस इन सेकंड अटेम्प्ट और इन फर्स्ट अटेम्प्ट. यस सर, इट इज इन सेकंड अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज रिजेक्टेड इन प्री. तो प्री राइट. होने के बाद मैं घर आया और ये सब चीजें प्लान की एंड इसका रिजल्ट अच्छा ही आया. राइट केतन, सो क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे एनालिसिस किया व्हेन यू फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? क्योंकि बहुत सारा हमारा ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाता है. तो अगर आप बता सकें कि आपने कैसे वर्कआउट किया, कि आपने पहले साल क्या गलती किया और फिर आपने ऐसा क्या चेंजेस लाया कि आपको आपका इतना अच्छा रैंक आया ये. राइट सर. सर पहले जैसे मैंने आपको बताया चेंजेस जो थे, सबसे पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था व्हेन आई वाज इन कोचिंग स्टडीइंग फॉर ऑल दोस सब्जेक्ट्स, तो इसमें प्रॉब्लम यही हो रही थी कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहा था. मैं उनको समझने में एक्चुअली ट्राई कर रहा था, बट और भी चीजें जैसे सॉल्व करना है, टेस्ट करना है, ये सब चीजें नहीं कर रहा था. ओके, तो यही प्रॉब्लम था, यही रीजन था जिसकी वजह से 2017 में फेलियर आया. बट जैसे ही सब खत्म करके मैं घर आया तो मैंने समझ लिया था कि अभी हमें एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत था मेरे पास, ऑलमोस्ट 1 साल था. प्री में ही रिजेक्शन होने की वजह से पूरा 1 साल मेरे पास पड़ा था. तो उसमें मैंने शेड्यूल किया, ऑलमोस्ट 10 दिन मैंने शेड्यूल करने के लिए एक तरह से इन्वेस्ट किए, जिसमें सब चीजें लिखी कि कहाँ से कहाँ क्या करना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, देन कौन से रेफरेंसेस सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो ये सब चीजें सर 10 दिन में पूरा फ्रेम आउट किया एंड देन इस पे वर्क किया. तो एक तरह से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो प्लानिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन. तो लोग सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ प्लान नहीं करते. मेरा ऐसा मानना है कि प्लानिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट केतन की जो एक्सपीरियंस है उससे एक चीज जो लर्नर्स को सीखना चाहिए कि प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और आपको कभी भी प्लानिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए. भले उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर इन्वेस्ट होता है, तो आप टाइम इन्वेस्ट करें लेकिन प्लानिंग जरूर करें. सो केतन से बातचीत में जो केतन ने हमें अपनी स्ट्रैटेजी बताई, उसके जो उन्होंने मेन 4 पिलर्स बताया, उसको हमने पॉइंट में स्लाइड में समराइज करके लर्नर्स के लिए दे दिया है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, और आप ये पॉइंट्स आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे. एक चीज केतन ऐड करना है कमिंग. सर. यस. सर यही कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनको मैसेज करते हैं कि सर आपकी स्ट्रैटेजी बता दीजिए, आपकी स्ट्रैटेजी बता दीजिए. स्ट्रैटेजी एक्चुअली कुछ नहीं होती. ये जो 4 चीजें मैंने बताई है इसी को आप फॉलो करना है, ठीक है. इन्हीं से सब कुछ हो जाता है, ठीक है. और हर कोई आदमी अलग अलग होता है, तो टॉपर ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की है शायद आपके लिए वो एप्लीकेबल ना हो, बट ये 4 चीजें ऐसी है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, और टॉपर से लेके जो भी बाकी सब लोग हैं वो सभी इससे को फॉलो करते हैं. तो इट्स लाइक अ यूनिवर्सल थिंग. बिल्कुल बिल्कुल केतन, हर आदमी, यस हर जो हमारा एस्पिरेंट्स है वो यूनिक है, उसका सोचने समझने का तरीका राइट. अलग है, तो उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हर एस्पिरेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट कोर पिलर आर द राइट, सेम 4 थिंग जो पिलर आपने. आर देयर. यस सर. यस सर. हाउ वाज योर जर्नी टू IRSME एंड what does it take to be working here? आई वोंट से इट वाज इजी सर. ऑब्वियसली जब आप कहीं मतलब आपको कहीं जाने का सपना देखते हो तो जो रास्ता होता है इतना इजी नहीं होता, और रास्ता तो खुद आपको बनाना पड़ता है. ओके, तो मैंने भी अपना रास्ता बनाया. जैसे मैंने पहले भी बताया कि 17 में जब फेलियर आया था तो उसके बाद एक प्लान किया था, बट उसमें फेलियर प्लान करते वक्त सीन ये होता है दोस्तों कि जब भी आप
बहुत ज्यादा टाइम के लिए प्रिपेयर करते हो, जैसे आपके पास 1 साल है, तो 1 साल में यू विल फाइंड कि आपके पास डीमोटिवेशन के बहुत से तरीके होते हैं जिससे आपके पास डीमोटिवेशन आता है, ठीक है। बहुत से तो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स ही होंगे जो आपको बोल देंगे कि अरे नहीं होने वाला, मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहा है, उसका नहीं हुआ, तेरा क्या हो गया, वट एवर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको रास्ते ढूंढने हैं, एंड मैंने सर इससे बचने के लिए एक बेस्ट रास्ता ढूंढा था, दैट वाज टीचिंग। ओके, तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन वेरियस क्लासेस इन मुंबई। ओके, तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि सर टीचिंग करने से पहला बेनिफिट ये होता है कि आप रिवाइज कर रहे हो खुद की नॉलेज को, ठीक है। उसके बाद आप नॉलेज बांट रहे हो, तो जो चीजें आप पढ़ा रहे हो उसको आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर इससे बेनिफिट ये होता है कि मेंस में मेरे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे सोचने भी नहीं पड़े, उनके आंसर्स मुझे ऑलरेडी पता थे, ठीक है। तो ये बेनिफिट हुआ टीचिंग का। और दूसरी चीज, जब भी कोई आप लेक्चर किसी को डिलीवर करते हो तो आपको उससे मोटिवेशन आता है, आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये चीजें आ रही है। तो ये दो चीजें जो है वो आपको लाइफ में कभी भी मोटिवेटेड रखेंगी, एंड मेरे लिए तो इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया। तो ये एक तरीका था सर, तो मैंने बहुत से क्लासेस में पढ़ाना चालू कर दिया, एंड इससे मैं अपना पैरेलली प्रिपरेशन भी करता था फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड आफ्टर लाइक जब एग्जाम डिक्लेयर हुई, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तभी भी मैं क्लासेस ही ले रहा था और क्लासेस में ही रिजल्ट आया था, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली जब रिजल्ट आ गया तो मैंने सब छोड़ दिया, मतलब बैचेस खत्म कर दिए, ऐसा नहीं कि सबको ऐसे हवे पे छोड़ दिया, बैचेस खत्म की, एंड देन आई फाइनली ज्वाइन IRS। तो आपके पैशन से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप टीचिंग में आएंगे? टीचिंग में आना, ये सर वो तो मेरा पहले से ही ड्रीम था। एक्चुअली मैंने सेकंड ऑप्शन रेडी भी करके रखा था कि अगर कुछ नहीं होता है तो यार मैं टीचर बन जाऊंगा इन एनी कॉलेज, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चीजों को एक्सप्लेन करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर में क्या होता है। श्योर श्योर श्योर। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप फ्यूचर में टीचिंग से जुड़ें और अपना एक्सपीरियंस फ्यूचर एस्पिरेंट से शेयर करें। जैसा कि केतन ने एक श्योर बहुत सही सर। चीज हमें ये बताई है कि अगर हम किसी दूसरे को कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, और इवन एक फीडमैन टेक्निक है जिसमें फीडमैन खुद ये बताते हैं कि आप दूसरे को एक्सप्लेन करते हो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ये पढ़ने का दो तरीका होता है, एक को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, दूसरे को बोलते हैं पैसिव रिकॉल। तो दूसरे को जब हम समझाते हैं तो दैट इज एक्टिव रिकॉल, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहता है। और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ कि आप खुद पढ़ने से कम समझते हैं, दूसरे को पढ़ाने से ज्यादा समझते हैं। तो आप एज अ टीचर ज्यादा सीखेंगे कंपेयर टू एज अ स्टूडेंट। राइट सर। So, coming to next question, Ketan, kindly tell us brief about your job and what is your role in the Indian Railway Service. Indian Railway Services of Mechanical Engineering basically consists of 3 departments. Mechanical wing जो है वो 3 departments को currently handle करता है. First department is carriage and wagons. It is about coaches and wagons. Okay. The next department is ENHM, that is environment and housekeeping management. Okay. Whereas the next department is diesel locomotive. ठीक है. तो ये तीन एक broader view में मैं बता रहा हूँ, in depth नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. तो broader view में ये तीनों departments manage करेंगे mechanical engineers. तो दोस्तों इसमें रोल जो होगा, इट विल नॉट बी टेक्निकल, नॉट बी मच टेक्निकल, ठीक है। आपको वहां जाके टेक्निकल चीजें नहीं देखनी है, आपको आपके अंडर जो सुपरवाइजर्स है, जो सेक्शन इंजीनियर्स है, उनको कंट्रोल करना। ओके, तो योर रोल इज टू बेसिकली गिव द आउटकम। आपको आउटकम मैनेज करना है, एंड एक तरह से मैनेजर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टेक्निकल जॉब इतना ज्यादा नहीं। Okay, so means aspirant can expect a techno managerial kind of job कि जहाँ आपका हाँ, यस सर। more of management, less of technical job. राइट Right? राइट But एक्चुअली। okay, can you draw a picture on how is a typical day in the life of a mechanical engineer in the Indian Railways? Okay. So currently there are 2 phases. First one is the training phase. Okay, and second is the joining phase or posting phase. Okay, तो posting phase you'll be having some responsibilities. आपको एक ऑफिस असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले ट्रेनिंग फेज की बात करूं तो दोस्तों ट्रेनिंग फेज में यू विल बी आइदर इन अ फील्ड ट्रेनिंग, जो आप जहाँ पे आप फील्ड को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, या फिर आपकी जो ट्रेनिंग होगी किसी ट्रेनिंग सेंटर में होगी। ओके, तो ट्रेनिंग सेंटर एंड फील्ड ट्रेनिंग में तो बेसिकली आपके लेक्चर्स होते हैं, तो इट्स अ 9 to 5 जॉब। आफ्टर 5 आपको कोई काम नहीं है, आपको जो करना है करो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है, सब तरह की फैसिलिटीज होती है।
आप वहां जा सकते हो और जो भी आपको चीज खेलनी है वो खेल सकते हो, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू पोस्टिंग होने के बाद एज यू विल बी हेडिंग सम डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आपके अंडर बहुत से लोग होंगे जो काम करेंगे, आपकी वजह से ही रेलवेज का स्मूथ वर्किंग होने वाला है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब होने के बाद आप फ्री हो गए कि आप बोलोगे मुझे और कुछ काम नहीं करना है, यू कैन एक्सपेक्ट कॉल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि 9 to 5 के बाद आपको कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको 24/7 काम है एक तरह से। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि आप कंटिन्यूसली ऑफिस में बैठे हो। मेजोरिटी ऑफ जो काम है दोस्तों वो फोन पे होता है, तो और इश्यूज जो भी आते हैं वो फोन पे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ओके। तो दिस वाज अबाउट लाइफ, but good thing is railway provides you accommodation, railway gives you free travel in second AC, okay। Then railway also gives you many facilities like club होता है, officers club होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजों के वजह से यू कैन स्पेंड अ हेल्दी इवनिंग एंड हेल्दी वीकेंड एज वेल। सो आप लगभग अगर हमें हमारे लर्नर्स को ये बता सकें कि आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे ऑफिस से वापस आते हैं? सर 9 to 5 ही होता है टाइम, 9 to 5 टाइम है, ठीक है। तो उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी लेट्स से कोई चीज़ों में बैकलॉग अगर है तो उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए आप ज़्यादा भी बैठ सकते हो। एंड एक एक चीज़ होती है कि जब आप जूनियर स्केल में होते हो, व्हेन यू आर एट मच लोअर लेवल, एट द स्टार्ट लेवल, देन आपको ज़्यादा काम होता है, ठीक है। अभी लोग इसको नेगेटिवली लेंगे कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो एग्जाम क्यों देना, कुछ और कर ले, ठीक है। बट दोस्तों जूनियर स्केल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप मैक्सिमम सीख सकते हो। अगर आप जूनियर स्केल में सबसे ज्यादा सीख लोगे तो शायद जब आप सीनियर स्केल में जाओगे, उससे ऊपर वाले स्केल में जाओगे, तो आपको चीजों को इतना ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और जूनियर स्केल में आपका एज भी होती है जो बहुत ज्यादा सीखने वाली है, तो मेरे ख्याल से जूनियर स्केल में जितने एफर्ट करने हैं कर लो, ठीक है, इससे बेनिफिट आपको ही होना। ग्रेट। सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप रेलवे में रहते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं? आई मीन इतना टाइम मिलता है आपको कि आप सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं? राइट, थैंक यू सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत लोगों को ये सवाल है। तो पहली बात तो दोस्तों रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करने के लिए बाय गिविंग यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, ओके, जैसे ही ज्वाइन करोगे आप, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होने के बाद आपको क्लियर एक फॉर्म दे दिया जाएगा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे जा सकते हो, ठीक है। इट इज जनरली फॉर 1 ईयर। तो 1 साल आप जाओ, आप घर पे जितना प्रिपेयर करना है, कोचिंग करना है, जो भी करना है करो, प्रिपेयर करो। आपको रेलवेज में जो आपको सीट अलॉकेट हुआ है वो कंफर्म होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। आपको ऑब्वियसली सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, जो पर्क्स मिलते हैं वो भी नहीं मिलने वाले, बट आपकी जो जॉब है वो कंफर्म, ठीक है, वो सिक्योर है। 1 साल आपको अपॉर्चुनिटी देती है रेलवे, एंड 1 साल होने के बाद आपको बोला जाएगा टू ज्वाइन, ठीक है। तो ये ईओएल का बेनिफिट है कि आप 1 साल दे सकते हो और आपकी जो जॉब अलोकेटेड है, आपको जो सीट अलोकेट हुई है तो यूपीएससी वो सिक्योर रहेगी, ओके। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब ट्रेनिंग चल रही है तब आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों कि अगर आप ट्रेनिंग चल रही है तो प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इट इज लाइक आप ट्रेनिंग भी स्पॉइल करोगे एंड आपका सीएससी का प्रिपरेशन भी स्पॉइल करोगे। देखिए सीएससी एक ऐसी एग्जाम नहीं है कि जो पैरेलल करने से हो जाए, ओके। तो इसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है, जैसे आप ईएससी के लिए डेडिकेटेड कर रहे थे, ओके। तो पैरेलल पैरेलल करने के चक्कर में क्या होता है ना, आप ट्रेनिंग अच्छे से कर पाते हो और ना ही आप सीएससी का प्रिपरेशन अच्छे कर पाते हो। तो इसके लिए एक्सेप्शन भी है सर। बहुत से लोग हैं जो रेलवेज में थे, उन्होंने पैरेलल प्रिपरेशन किया और आज अच्छी पोस्ट पे है, ओके। तो ये एक्सेप्शंस तो होंगे सब जगह पे, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेनिंग के दौरान प्रिपरेशन करें, ठीक है। इससे ट्रेनिंग रेलवेज में सबसे अच्छा फेज होता है। आप जितने भी सीनियर से पूछोगे, हमने जितने भी सीनियर से पूछा रेलवेज में, वो यही बोलते हैं कि ट्रेनिंग बेस्ट टाइम था, ओके। और प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो किसी और एग्जाम का, तो एक तरह से आप उस बेस्ट टाइम को खो देते हो, ओके। तो ये आंसर था सर मेरे साइड से। सो लर्नर्स के लिए कि ये रेलवे का शायद आई थिंक स्पेशल पार्ट है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स नहीं देते, कि जो ईओएल प्रोवाइड कराता है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के राइट लिए। सर। एंड सर और रेलवेज 2 टाइम ईओएल देता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट रेलवेज 2 टाइम ईओएल देता है। सबसे पहले जब ज्वाइन करने जाओगे तब, और आपका 1.5 साल का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप पोस्टिंग ज्वाइन करोगे तब, ये दोनों टाइम पे आप ईओएल ले सकते तो क्या आप 2 ईओएल लगातार दे सकते हैं? हैं। लगातार नहीं ले सकते, कोई भी एक ही बार क्लेम हो सकता है सर। एक तो आप ज्वाइनिंग करने से पहले ले लो, नहीं तो फिर पोस्टिंग जब आपकी होने वाली है तब ले लो। मतलब 2 बार यूज कर सकते हैं ना, लाइक एक बार प्रिपेयर, नहीं 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 नहीं, एक ही बार, कभी भी दोनों में से एक ही बार आप यूज करो। एक बार यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि ये काफी क्लियरिटी देगा, क्योंकि
ये एस्पिरेंट्स के दिमाग में काफी ये चीज रहता है कि पता नहीं हम सीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। बट केतन जी ने एक सही चीज रिकमेंड किया है कि डोंट प्रिपेयर विद योर ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सपोज आप सीएससी नहीं क्लियर करते हो, आप रेलवेज में रहते हो, तो ट्रेनिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आपको वो जॉब जब आप ऑन ड्यूटी रहते हो तो उस चीज को लेके आपको सफर करना पड़ता है। राइट सर। सो कैन यू draw a picture on your training scenario for the learners? सर ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट पार्ट इन इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया तो हम लोग ऑलमोस्ट 8 महीने से है और पूरा इंडिया घूम चुके हैं। ओके, तो बेनिफिट ये है कि मतलब आप ऑब्वियसली आप घूम नहीं रहे हो, आप एक तरह से ट्रेनिंग पे हो। बहुत सी लोकेशन है, बहुत सी सिटी है जहाँ पे रेलवेज के ट्रेनिंग सेंटर है, रेलवेज के वर्कशॉप है, डीजल सेट्स है, कोचिंग डेपोज है, वहाँ आपको जाना है। आप ऑब्वियसली ऑफिस आवर जो है उसमें काम ही करोगे, ठीक है, बट इवनिंग्स है, देन वीकेंड्स है, आप घूम सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमने मेरे एक दोस्त ने अभी कैलकुलेशन किया है, हम अब तक 32,000 किलोमीटर घूम चुके हैं। सो अगर आप हमें बता सकें कि आप कौन कौन से लोकेशन पे गए हैं अभी तक? सर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मतलब इंडिया के एकदम टॉप नॉर्थ ईस्ट पार्ट से हमने सिक्किम और नागालैंड गए थे। वहाँ पे हमारे एक एनएफआर डिवीजन है सर रेलवेज का, एनएफआर रेलवेज है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज है, उसका एक डिवीजन है लामडिंग, वहाँ हम गए थे, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थी। तो ये सिक्किम एंड असम ये दोनों स्टेट हमने घूमे थे। उसके बाद हमने नागालैंड भी घूमा था। तो ये जो 3 स्टेट थे वो हमने हमारी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है उसके ट्रेनिंग में कवर किए। देन ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। साउथ में हम गए थे, रेलवेज का एक प्रोडक्शन यूनिट है आईसीएफ, बहुत फेमस है, तो वहाँ गए थे हम चेन्नई। तो वहाँ से वीकेंड्स पे हम पौंडीचेरी, उसके बाद केरला ये भी घूमे थे। देन बैंगलोर गए थे, बैंगलोर में रेलवे फैक्ट्री है। देन वहाँ पे बैंगलोर से हम मैसूर भी गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अभी अब करंटली गुजरात में है, गुजरात में वडोदरा में। देन उसके बाद मुंबई गए थे। उसके बाद एक जम्मू कश्मीर का भी एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग होता है। ओके, उसके बाद फॉरेन ट्रेनिंग भी होता है। तो ये सब चीज़ें इन लाइन है। तो इंडिया आप घूम लेते हो, बहुत बहुत जगह ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लेते हो। आपने कुछ बताया फॉरेन ट्रेनिंग का, अगर आप उस पर कुछ बता सकें। यस, यस सर। रिसेंटली हमारे ये 2-3 साल पहले शुरू हुआ है सर। रिसेंटली सीनियर हमारे गए थे, 3 कंट्रीज होती है, उनमें से किसी एक कंट्री में आपको भेजते हैं। रशिया है, जर्मनी एंड फ्रांस है। बट करंटली हमारे बैच के साथ क्या होगा हमें नहीं पता, बिकॉज जो अभी सिनारियो चल रहा है उसके वजह से शायद रेस्ट्रिक्शन लग जाए। बट इट डिपेंड्स कि रेलवेज क्या डिसीजन लेती है। ओके, बट हमारे सीनियर्स का अगर बताऊं तो हमारे सीनियर्स रिसेंटली फ्रांस गए थे। रिसेंटली इन द सेंस 6 महीने पहले फ्रांस जाके आए। तो वहाँ पे एक वीक का मॉड्यूल होता है। तो आपको इंट्रोडक्शन होती है उस पर्टिकुलर जो कंट्री है उसके रेलवेज का। तो एक वीक के लिए आपकी फॉरेन ट्रेनिंग होती है एंड इट इज कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर यू। मतलब सिर्फ आप ही अलाउड है उसमें, आपकी फैमिली आप नहीं करें। सो उसमें ये सारे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, या इसमें कुछ मेरिट बेस पे कुछ लोगों को ही भेजा नहीं नहीं जाता नहीं नहीं, सब सब जाते हैं सर, जितने भी सिलेक्टेड है बैचेस में उनको भेजा जाता है। है? ग्रेट। A memory that made you feel ecstatic when you are working at your current department? मेमोरी तो नहीं बोल सकता, लेकिन सर वेन एवर वी आर वर्किंग इन रेलवेज, आपको एक तरह से जो कंट्री है उसके लिए फीलिंग आती है एंड देन जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके लिए एक फीलिंग आती है, क्योंकि वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग इट इज गोइंग टू बेनिफिट देम। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने एक रेलवे के कोच में डिसीजन ले लिया कि मुझे एक बॉटल हैंगर लगाना है, तो ये बॉटल हैंगर का एक छोटा सा डिसीजन पता नहीं करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो एक छोटा सा डिसीजन है बट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ईच एंड एवरी। तो ये एक फीलिंग होती है व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन इंडियन रेलवे। जैसे कि आपने बताया कि लाइक इट्स 24/7 जॉब की, आपको घर आने के बाद भी कॉल्स आ सकते हैं, अगर आपका बैकलॉग यस है सर। तो आपके घर आने के बाद भी वर्क प्रेशर। सो हाउ डू यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस? ओके, सो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ख्याल से ये एक पर्सनल चीज है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कंटिन्यूअसली बिजी होने के बाद भी हैप्पी है एंड जिनके पास कुछ काम नहीं है तो भी वो दुखी। ठीक है, तो ये एक तरह से पर्सनल चीज है। तो वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है दोस्तों कि जितना भी काम आपके पास है वो अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, एंड ये जो फोन वगैरह आते हैं ये सिर्फ तभी होगा अगर कोई बुरी कंडीशन होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई फेलियर हो गया। ठीक है, तभी आपको फोन आएंगे। रेस्ट आपके जो सुपरवाइजर्स है, सेक्शन इंजीनियर्स है, वो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज दे आर टू ब्रिलियंट इन देयर टेक्निकल नॉलेज। ओके, तो वो सब संभाल लेंगे। अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है देन आपको फोन है। ओके, तो आफ्टर लाइक वर्किंग आवर्स के अलावा आपका जो टाइम होता है वो आपके पास ही है, आप उसको किस तरह से यूज करना है
इट डिपेंड्स ऑन यू एंड एज आई टोल्ड यू इट्स योर पर्सनल फीलिंग। आप अगर ऐसे इसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आना चाहते हो कि मुझे कुछ काम नहीं करना है, ऐसे ही जो पहले वाली अफवाहें थी वैसा अगर कुछ सोच रहे हो तो यार मत आओ, ठीक है, क्योंकि काम तो करना ही है एंड मजा आता है ये सब चीजें करने में। तो इसको आपको कंस्ट्रक्टिवली लेना है, पॉजिटिवली लेना है एंड मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। तो एक जब आप वर्क करोगे तो आपको मोटिवेशन आ जाएगा। आपका क्या मोटिवेशन है इस वर्क को लेके, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? सर मोटिवेशन तो ऐसा था सर, ये सपना था मेरा, तो एक तरह से सपना पूरा हो गया। तो ये मेरे लिए इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि घर से ही ये सब रेलवे वाला बैकग्राउंड चलते आ रहा है, तो अच्छा लगता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ओनली। इंडिया का जो कैरियर है रेलवेज, उसी का एक पार्ट हूँ, तो ये एक प्राउड फीलिंग आती है एंड विच इज इनफ फॉर मी फॉर कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड। कितना, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? ओके सर, तो सर मेरा जो टाइम टेबल था वो अनलिमिटेड था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी भी लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स पढ़ूंगा, ठीक है। बहुत से लोग 5-6 घंटे पढ़ लो दिन में, या फिर 10 घंटे पढ़ लो, हो जाएगा। तो मैंने ऐसा किया था सर, मैंने एक एजुकेटिव एनवायरनमेंट बनाया था। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, एक टेबल रखा, एक चेयर लगा दी, ठीक है, उस पर मेरी जितनी भी बुक्स थी, जो भी प्रिपरेशन चल रहा है वो सब मैं रखा रहता था। जब भी मेरा मूड हो मैं चला जाऊंगा, पढ़ूंगा। जब भी मुझे कुछ बोर हो गया, कुछ है, तो मैं वहां से निकल आऊंगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि मैं अपना गोल मीट कर रहा हूँ कैसे, क्योंकि मैक्सिमाइज कर रहा हूँ मैं मेरा स्टडी आवर्स को, ठीक है। तो मैंने ऐसा एक पर्टिकुलर नंबर सेट नहीं किया था। जब भी वक्त मिले जाओ पढ़ो, जब भी आप थोड़ा बोर हो जाओ वहां से बाहर आ जाओ, 15-20 मिनट को टाइम पास कर लो, फिर से चले जाओ, ठीक है। तो इससे होता क्या है सर, प्रिपरेशन को एक तरह से अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर देना। तो जब प्रिपरेशन आपका डेली लाइफ में इंटीग्रेट हो जाएगा, तब उसका मजा कुछ और ही होगा। सो दैट मीन्स, अगर आपकी बातों से कंक्लूजन निकालें कि इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स दैट मैटर्स, इट्स द क्वालिटी ऑफ स्टडी दैट राइट मैटर्स। राइट राइट, अपनी एफिशिएंसी कितनी है ये डिपेंड करता है। अगर आप 10 घंटे पढ़ने का सोच रहे हो और 50% एफिशिएंट हो, तो आप एक इफेक्टिवली 5 आवर्स से स्टडी कर रहे हो। इससे अच्छा जब भी आपको बोर हो आप निकल जाओ, जब भी आपका मन करे पढ़ लो, क्योंकि तो अल्टीमेटली वही है जो आपकी एफिशिएंसी डिसाइड करता है। जब आप बोर होते थे तो आप कैसे क्या करते थे, मतलब आपने सर मैं यूट्यूब, हाँ तो मैं यूट्यूब देखता था, कुछ फनी वीडियो देख लिया। जब भी सर सीन, मतलब मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी आप बोर होते हो तो आपको उस पर्टिकुलर इनर्शिया को ब्रेक करना है, ठीक है। इनर्शिया को ब्रेक कैसे करोगे, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके। जब भी आपको नेगेटिविटी आती है, आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है बाय वाचिंग समथिंग व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। तो लेट्स से यूट्यूब पे अगर एक फनी वीडियो भी देख लिया, या फिर कोई ऐसा वीडियो देख लिया जो मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था, जो इनर्शिया था, जो डिमोटिवेशन वाला था, वो सब चीजें ब्रेक हो जाती और आप फ्रेश हो जाते। तो ये मेरा मानना था और ये वर्क किया है बहुत से टाइम, और अभी भी वर्क, अभी भी अगर कोई चीजें नेगेटिव हो जाती है तो ये करने से हो जाता है। मतलब आधा घंटा क्रिकेट भी खेल लो तो भी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ब्रेक हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। Ketan, what are the different location that a person can get posted or transferred to in Indian Railways? ओके सर, रेलवे इज अ ऑल इंडिया सर्विस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कैडर। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर पुलिस सर्विसेज में कैडर होता है स्टेट वाइज, यहाँ पे कोई कैडर नहीं है, ऑल इंडिया सर्विस है। आप रेलवे इंडिया के कोई भी शेड में, कोई भी डेपो में, किसी भी जगह पे, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट पे पोस्ट हो सकते हो। बट अगर आपको, आप ऐसे आदमी नहीं हो जिसको घर के क्लोज ही रहना है, या फिर जिसको अपने मम्मी पापा के पास ही रहना है हमेशा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रेलवे ज्वाइन करने के बाद आप नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है उस पे एटलीस्ट 5 to 6 ईयर स्पेंड करो, क्योंकि वो जो चीज है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, वो सच में बहुत बेहतरीन है। वहाँ पे जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, जिससे हम लोग पर्सनली मिले भी थे, वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था NFR, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो रेलवेज में ये एक बेनिफिट है, अगर आप NFR में हो तो आप बहुत ही ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो, एक अच्छा वर्किंग कल्चर एंजॉय कर सकते हो, एंड उसके कुछ बेनिफिट्स भी रेलवे देती है। So मतलब that's a all India सर्विस, हम कहीं पर भी, हमें थ्रू आउट इंडिया कभी भी पोस्टिंग की जा सकती है। यस यस सर, क्या, कभी भी दे सकते। अगर मैं जनरली पूछूं तो आपका जो ऑफ रहता है, वीकेंड्स ऑफ रहता है, वो इट्स संडे ओनली और सैटरडे संडे? सैटरडे संडे सर, इट डिपेंड्स अपॉन आपके सीनियर कैसे, बट सीनियर स्टिल इट्स इन द सैटरडे संडे ऑफिशियली। ऑफिशियली सैटरडे संडे। यस तो अगर सर, सीनियर चाहते तो आपको सैटरडे को बुलाते हैं? हाँ। Great.
अगर आप हमें कुछ बता सके मेडिकल, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवेज का जो आई थिंक मेडिकल होता है दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट, और काफी मेडिकल में रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो अगर आप हमें कुछ राइट। बता सकें कि कुछ ऐसी जो चीजें ध्यान रखना है मेडिकल को लेके इन इंडियन रेलवेज। ओके, तो सबसे पहली चीज जो मैं बताना है कि अपना जो दिमाग है वो सोचता है कि जब भी देयर इज अ वर्ड एग्जाम तो वी हैव वन फियर, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम होगी तो अपने को फियर होता है, ठीक है। मेडिकल एग्जाम को भी लोग डरते हैं, मतलब लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं, देन ऑल्सो मेडिकल एग्जाम के लिए वो डर रहे हैं, ठीक है। तो ये डर जो होता है वो कभी भी होगा वेन एवर इट कम्स टू एनी एग्जाम, ओके। बट गुड थिंग अबाउट रेलवेज का मेडिकल जो मैंने दिया था, सर मैंने अब तक 3 मेडिकल दिए हैं। एक रेलवे इसका हो गया, दूसरा एक प्राइवेट कंपनी जहां मैं पहले काम करता था, और तीसरा पीएसयू। इन्हीं तीनों का मेडिकल हो चुका है, तो सबके मेडिकल के बारे में ओवरऑल नॉलेज है। तो द गुड थिंग इज गाइज, आपने कभी भी डरना नहीं है कि मेडिकल कुछ नहीं है, आपका सब ठीक है। आप अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ चीजें आप छुपा रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो, जैसे बहुत से लोग सर छुपाते हैं करंट ब्रांड एंड ऑल ये सब चीजें, ठीक है। तो ये छुपाने नहीं है, ओके। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्पेक्स है, लेट्स से कुछ अमाउंट ऑफ नंबर है, लेट्स से माइनस या फिर +1 2 वट एवर इट इज। तो जब मेडिकल एग्जाम हो छुपाते हैं कि मुझे नहीं सब सही दिखता है, तो ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट है ही नहीं। देखिए रेलवेज का मेडिकल जो है ऑफिसर लेवल के लिए एक ओके ओके क्राइटेरिया पे होता है, एकदम टफ क्राइटेरिया पे नहीं है। टफ क्राइटेरिया किसके लिए है, लेट्स से अगर लोको पायलट बता दूं, तो लोको पायलट्स के लिए बहुत ज्यादा टफ क्राइटेरिया, क्योंकि उनका जो जॉब है इट इज मोर ओवर लाइक फिजिकल जॉब ज्यादा है वहाँ पे, बहुत सी और चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उनका मेडिकल टफ होता है, बट ऑफिसर्स के लिए मेडिकल टफ नहीं होता। तो ये जो डर है मेडिकल का, ये निकालना जरूरी है, ओके। तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि मेडिकल में जो प्रोसेसेस होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले आपकी आई टेस्ट होगी, ठीक है। उसमें आपको विजन क्लियर है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे रेड और अपने येलो एज वेल एज ग्रीन, इन 3 कलर्स पे आपका विजन टेस्ट किया जाएगा। देन देयर विल बी अ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ओके। इसके बाद कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिनल टेस्ट होगी, ब्लड टेस्ट होगी, ओके। ये सब होने के बाद देयर इज अ फाइनल सर्जिकल टेस्ट। तो ये 5 तरह के टेस्ट हो गए, एंड ये इन्हीं टेस्ट पे फाइनली आपका रिजल्ट आता है, ओके। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता इंस्टेंटली, वो यूपीएससी के रेलवेज के वेबसाइट पे आता है, ठीक है। तो ये रेलवेज के वेबसाइट पे ही रिजल्ट एंड ऑल ये सब चीजें हो जाती है। एक बार यूपीएससी आपका रिजल्ट पब्लिश कर दे, उसके बाद यूपीएससी हैंड ओवर्स यू टू इंडियन रेलवे। तो सब चीजें को अपडेट इंडियन रेलवेज के वेबसाइट पे आता है, ओके। और एक चीज है गाइज, ये जो भी चीजें हैं अबाउट मेडिकल एंड ऑल, ये सब चीजें जो है, मेरा एक चैनल है। आई होप सर इफ आई कैन शेयर इट। श्योर श्योर केतन। हाँ, तो guys, as I told you, motivation is something which is important in each and everyone's life, okay? So in order to motivate you guys who are preparing for ESE as well as GATE, one channel, Indorail, it's the name of that channel. And on that channel we basically upload all those things related to training, as well as how the basic question that every aspirant has, like right, medical कैसी होती है, उसके बाद रेलवेज में लाइफ कैसी है, उसके बाद रेलवे में ट्रेनिंग कैसी होती है, ये सब चीजें हम इस इंटरव्यू में डिटेल में शायद ना कर पाए, ठीक है। इसीलिए एक चैनल है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट चैनल गाइस, इट इज जस्ट मेड टू मोटिवेट यू। एंड इट वाज लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई यूज्ड टू सर्च फॉर ऑल दोस चैनल्स वेयर आई कैन फाइंड सच स्टफ, but there was no channel available, and that's why I started with this thing, okay। So I hope you will join, you will watch all those videos and get yourself motivated. I guess it's clear to all of you. Thank you sir. ग्रेट। केतन केतन काफी तरीके से एस्पिरेंट्स की हेल्प करते हैं एग्जाम को लेके, अदर चीजों को लेके, थ्रू हिज यूट्यूब चैनल इंडोरेल। सो आप जरूर देखें इनकी जो वीडियोस हैं, काफी इंस्पायरिंग है। कुछ वीडियोस मैंने Thank you पर्सनली भी sir. देखा है, रियली। Thank you sir. सो हम लोग इंटरव्यू के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं, जहाँ पे रैपिड फायर राउंड होगा। केतन, आई होप यू आर रेडी। Yes sir. First question is, if you could be any animal, what would it be and why? I guess I'll be vulture sir. Why? क्योंकि सर मुझे सब चीज़ों को टॉप व्यू से देखना अच्छा लगता है। बहुत सी जो भी चीज़ें चल रही है उनको ऊपर से नज़ारा देखो, एंड उससे जजमेंट आप कर सकते हो इजीली उनका। तो आई गेस वो सही है। What is one thing that annoys you the most? स्लो इंटरनेट कनेक्शन। Describe yourself in 3 words.
active, then productive, and I am always a learner. I don't hesitate to learn anything if it's of my use. If you could get yourself anything, what did you get? Okay, right now I need a new phone. That is what I want right now. Any special phone or any phone? No, it's normal phone, sir. Not special. What is your lifelong dream? Lifelong dream is to stay happy and to stay satisfied, because satisfaction is something which we always lack. Okay, like I always used to think कि when जब एग्जाम्स क्लियर वगैरह हो जाएंगी तब शायद खुशी आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता. जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तभी भी खुश रहो. ओके एंड आप जब प्रिपेयर हो जाओगे, एग्जाम पास भी हो जाओगे, तभी भी खुश रहो. ठीक है, क्योंकि बिकॉज प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ. So important is to be happy. And that is what I want for life. So आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ केतन पाटिल थे. उन्होंने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए. उन्होंने अपना जर्नी शेयर किया, कैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम फेल होने के बाद सेकंड टाइम सक्सेस पाया. वो इंडियन रेलवेज में अभी काम कर रहे हैं और उन्होंने अब बताया हमें बहुत सारी जानकारी दी जो लर्नर्स के लिए आई होप कि बेनिफिशियल रहेंगी. लाइक हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे कर सकते हैं इंडियन रेलवेज के साथ. केतन, अगर एक लास्ट चीज आप शेयर कर सकें कि व्हाट आर द सैलरी एंड पर्क्स आपको जो इंडियन रेलवेज मिलता है बिफोर आई वाइंड अप दिस इंटरव्यू. ओके, सो सैलरी एंड पर्क्स की अगर बात करूं तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके बेसिक पे तो सेम है 56,100 रुपीज. ओके, तो इसके ऊपर जो अलाउंसेस होते हैं वो मैटर करते हैं. ठीक है, तो सर बहुत से अलाउंसेस दिए हैं रेलवेज ने. फिलहाल अगर आप ट्रेनिंग की बात करो तो कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते. पोस्टिंग में वो अलाउंसेस मिल जाते हैं. ठीक है, बट ट्रेनिंग में अगर मैं इन हैंड सैलरी बताऊं तो सर इट वैरीज. ओके, समटाइम लाइक ऐसा भी टाइम आया है व्हेन आवर सैलरी यूज्ड टू बी 1.15 lakhs. ठीक है, तो ऐसी भी सैलरी आई थी. तो ये अलाउंसेस पे डिपेंड करता है. बट अगर मैं एक एवरेज सैलरी बता दूं तो इट इज अराउंड 65 to 70,000 इन प्रोबेशन पीरियड और इन ट्रेनिंग पीरियड. एंड अगर मैं पर्क्स की बात बताऊं तो यू विल फाइंड कि देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स. आई गेस रेलवे सबसे ज्यादा पर्क्स आपको देती है. जैसे मैं अगर आपको फर्स्ट चीज बता दूं तो योर ट्रैवल इज फ्री. ओके, एंड इट इज इन सेकंड एसी. तो सेकंड एसी में आपको फ्री ट्रैवल मिलता है. ओके, देन अलोंग विथ योर फैमिली आपको ट्रैवल मिलेगा फ्री. देन सेकंड थिंग इज रेलवेज के रेस्ट हाउसेस आपको मिलते हैं. ऑफिसर रेस्ट हाउसेस होते हैं लाइक इन एवरी सिटी. लेट इट बी एनी सिटी, यू विल फाइंड वहां पे रेलवेज के रेस्ट हाउस है. ठीक है, तो सर जैसे हम माउंट आबू गए थे, वहां पे भी रेलवेज के रेस्ट हाउस थे. ओके, तो लाइक इट इज अ रिमोट लोकेशन बट देयर आल्सो रेलवेज के रेस्ट हाउस. ओके, तो ये रेस्ट हाउसेस आपको मिलते हैं. तो ऐसे बहुत से पर्क्स हैं ओके जो आपको रेलवेज देती है. ग्रेट केतन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सर. अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू सीरीज अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें फ्यूचर में आप सोशल मीडिया के जरिए ऐसे क्वेश्चन भेज सकते हैं जो हम फ्यूचर में जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं, जो कैंडिडेट हम इंटरव्यू लेंगे, हम उनसे जरूर पूछेंगे आपके क्वेश्चंस. और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑडियंस के मैंने इनकॉर्पोरेट भी किए, बीच में केतन को इंटरप्ट करके मैंने पूछा भी है. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you very much all of you and best of luck for your exam.